नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल एंट्रेंस हैक्स। आज हम एसबीआई पीओ प्रीलिम्स जो 4 जनवरी 2021 को हुआ था उसको सॉल्व करेंगे और क्या शॉर्टकट्स मेथड्स यूज कर सकते हैं देखेंगे। इस पार्ट में मैं एलआर की प्रॉब्लम्स लूंगा, आगे क्वांट की प्रॉब्लम्स दूसरे के लिए मैं अलग वीडियो अपलोड करूंगा। सो कमिंग फर्स्ट coming to first set of 5 questions. It is a puzzle of moderate level. 9 persons तीन डिपार्टमेंट में वर्क करते हैं and we have information that at least 2 persons are working in the same department but not more than 4. So that means किसी भी डिपार्टमेंट में minimum 2 persons होने चाहिए and maximum 4 लोग होने चाहिए. So let's start. L works with Q but not in IT. So we can simply uh, write LQ together and not in IT. Then we have other information that P does not work with HR. So P not in HR. Both K and R work in the same department but not work with P and J. Okay. K and R in the same department. Okay. But not with P and J. So not with P and J. Okay. Then M work only with O. M work only with and with O but not in IT. Okay. They also does not work in IT. So M and O are together. Then we have information that J work with N. Okay. N and J are together. Also O does not work in production. Okay. If M and O does not work in IT, does not work in production, that means O and M work in production. So we can write O and M, they work together in they are not working in IT, they are not working in production, so they are working in HR. Also no one else work with them, so only two of them are working in HR. LQ are not working in IT. We know LQ are not working in IT. They cannot work in HR as only M and O work in HR. So L and Q are working in production. Then K and R work in the same department but not with PJ. Also, if KR is not working with PJ, they are not working with N also. So we can also write here N here. So KR not working with P, J and N. We also have information that P is not working in HR. So P has to work in IT. So P, J and N are working in IT. K and R uh, not working with P, J and N. K and R cannot work in HR. So K and R are working in production. So we have got all the departments where they are working. Now we can come to the questions. So the first question is, who among the following work with Q except L? So except L, K and R are working with Q. Next question is, how many persons work in HR? So answer is 2. Question number next is, in which of the following department R works? So we know R works in production. Next question is, 4 of the following 5 are alike in a certain way, so form a group. Find the one who does not belong to that group. We have option PN, JK, LK, QRL, M and O. So we see only J and K are the odd one out as they are from the different departments. Next question is, which of the following pair or group of persons work in IT? So we have IT people P, J and N. So that's all. The 5 questions have been solved. Coming to next set of 5 questions. The level is little difficult. There are two variables here, that is month and the lecture which people take. So we'll start simply by writing months on top and then we'll go to the statements. So let's start by writing the months, that is Jan,
May, June, July, September and December. Now we'll go to the first statement, that is take lectures on baby lotion in the month which is 30 days. So 30 days, we know 30 days are in either June or in September. So D could take lecture on baby lotion either in June, or he can take lecture on in September. Now E takes lecture on T but not just before A. We have no use right now of this statement, so we'll come to this statement later. Now coming to third statement, A takes lecture in the month which has even number of days. So again we are talking about 30 days. So A can take lecture either in June or September. So if in this option A will be here, in this option A will be here. Okay. Now in next sentence, two persons take lecture between D and the one who takes lecture of juice. तो D और जूस वाले के बीच में दो लोग हैं, तो D इधर है अगर, तो जूस वाला दिसंबर में चले गया। D अगर ये है तो जूस वाला मई में है। Now there are as many persons taking lecture before A, same as the number of person take lecture after the one who takes lecture on coffee. कॉफी वाले के बाद और ए से पहले बराबर लोग लेक्चर लेते हैं। तो पहले स्टेटमेंट में ए से पहले 4 हैं, तो कॉफी के बाद 4 होने चाहिए। तो कॉफी अब होगी मई में। सिमिलरली इसमें ए से पहले 2 लोग लेक्चर दे रहे हैं, तो कॉफी के बाद 2 लेक्चर देने चाहिए। तो जुलाई में कॉफी है। ठीक है। नाउ कमिंग टू नेक्स्ट स्टेटमेंट, सी takes lecture just before the one who takes lecture on diaper. सी के इमीडिएटली बाद डायपर है, यानी कि सी और डायपर वाले जो लेक्चर लेते हैं वो साथ साथ होने चाहिए। तो हम देखेंगे अपने ऑप्शन में कि साथ में जो बचे हैं हमारे पास, अगर सी यहाँ पर होता है तो यहाँ पर कॉफ़ी है, तो ये नहीं हो सकता। सी यहाँ पर होगा जुलाई में, तो डायपर हमारा सितंबर में ए ले सकता है। तो हम इसलिए सी को जुलाई का स्लॉट दे देते हैं और डायपर का ए को दे देते हैं। ठीक है। सिमिलरली इसमें सी इधर नहीं हो सकता जनवरी में, सी का जूस हो सकता है, सी का लेक्चर जूस पे हो सकता है, तब ए का डायपर बनेगा, और कोई ऑप्शन इसमें नहीं बन रहा है। तो सी का जूस है तो ए का डायपर। नेक्स्ट स्टेटमेंट है कि बी नीदर टेक्स लेक्चर ऑन कॉफी नॉर जूस। ओके, इस स्टेटमेंट से पहले हम आ जाते हैं इस वाले स्टेटमेंट में कि ई टेक्स लेक्चर ऑन टी बट नॉट जस्ट बिफोर ए। ई का लेक्चर टी पर है, तो टी के लिए तो एक ही स्लॉट दिख रहा है इसमें जैन में, है ना। तो ई को हम इधर अगर टी लेगा ठीक है, और इस वाले नेक्स्ट ऑप्शन में भी ई के पास 2 ऑप्शन है इसमें। ई या तो जनवरी में टी पे ऑप्शन बोलेगा, या ई आपका दिसंबर में लेगा। ठीक है। अब हम नेक्स्ट स्टेटमेंट में आ जाते हैं, बी नाइदर टेक लेक्चर ऑन कॉफी नॉर जूस। बट बी के लिए तो हमारे पास 2 ही ऑप्शन बच रहे हैं, या तो कॉफी या जूस, तो यानी कि ये वाला तो हमारा गलत है। ठीक है।
नेक्स्ट में जाते हैं, एफ डज नॉट टेक लेक्चर ऑन कोल्ड ड्रिंक, इस पे हम बाद में आते हैं। ई डज नॉट टेक लेक्चर आफ्टर डी। अब इसमें देखें, अगर हम ई को यहाँ देते दिसंबर में तो ई का लेक्चर डी के बाद पड़ रहा, तो यानी कि ये भी पॉसिबिलिटी गायब है, तो हमारे पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बचती है। अब हम ये यहाँ पे देख लेते हैं कि बी नीदर टेक लेक्चर ऑन कॉफ़ी नॉट जूस, तो ये बी का लेक्चर कॉफ़ी का नहीं है, जूस का तो हमने पहले ही कर दिया है, तो बी का लेक्चर आएगा हमारा दिसंबर में। और एफ डज नॉट टेक लेक्चर ऑन कोल्ड ड्रिंक, एफ कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे तो एफ हमारे पास बचेंगे क्या, कॉफ़ी, और बी हमारे लेंगे माशे कोल्ड ड्रिंक पे लेसन। ठीक है, इस तरह से हमने क्वेश्चन, काफ़ी डिफिकल्ट था लेकिन इजीली सॉल्व कर लिया। अब हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है कि विच स्टेटमेंट इज ट्रू। तो हम देखते हैं, सी टेक्स लेक्चर बिफोर ई, तो ये स्टेटमेंट सी टेक्स लेक्चर बिफोर ई तो गलत है, सी का लेक्चर ई के बाद है मई में, दिस इज फॉल्स। एफ टेक्स लेक्चर ऑन कॉफी, दैट्स ट्रू। ई टेक्स लेक्चर इन जनवरी, इट्स फॉल्स। सी डज नॉट टेक लेक्चर ऑन जूस, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। तो हमारा बी ऑप्शन इज करेक्ट। द नंबर ऑफ पर्सन्स टेक लेक्चर आफ्टर सी सेम एज नंबर ऑफ पर्सन्स टेक लेक्चर बिटवीन डैश एंड डैश। तो सी के बाद हम देखते हैं कि 4 लोग लेक्चर ले रहे हैं, तो 4 लेक्चर किस किस के बीच में, ई एंड द वन हु टेक्स लेक्चर ऑन कोल्ड ड्रिंक, दैट्स ट्रू। ई का पहला लेक्चर है, कोल्ड ड्रिंक वाले का लास्ट लेक्चर है, तो इनके बीच में 4 है, तो दिस इज ट्रू। सी एंड डी के बीच में सिर्फ 2 हैं, तो दैट्स फॉल्स। द वन हु टेक्स लेक्चर ऑन बेबी लोशन एंड एफ, बेबी लोशन एंड एफ के बीच में 0 है, दैट इज ऑल्सो फॉल्स। तो इसका आंसर हमारा ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग टेक लेक्चर इन मई में लेक्चर सी ने लिया था जूस पर। 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Find the one who does not belong to that group. So D, B, F and E. D देखे तो हम सितंबर में है, B देखे तो दिसंबर में है, F देखे तो जुलाई में है, E देखे तो जैन में है, C देखे तो मई में है। तो इसमें से केवल D ऐसा हमारा पर्सन है जिसके जो उस मंथ में लेक्चर ले रहा है जिस मंथ में 30 डेज है। Now last question is, who among the following take lecture just before B? तो just before B तो हमारा D लेता है on body lotion, तो the one who takes lecture on body lotion, baby lotion and C, तो both A and C are correct, तो answer is this. नेक्स्ट सेट में हमारे पास 4 क्वेश्चंस हैं जो सिटिंग प्रॉब्लम पे है। सर्कुलर सेटिंग है इसमें और लोग दोनों डायरेक्शन में फेस कर रहे हैं, आधे लोग इनवर्ड फेस करते हैं, आधे लोग आउटवर्ड फेस करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमारे को लेफ्ट राइट का कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि क्या लेफ्ट है क्या राइट है। जैसे कि सपोज कोई अंदर की तरफ फेस करता है तो उसका राइट एंटी क्लॉकवाइज होगा, लेकिन जो आउटवर्ड फेस करता है उसका राइट क्लॉकवाइज होगा। सिमिलरली फॉर लेफ्ट डायरेक्शन। तो इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हम स्टार्ट करते हैं 2 ऑप्शंस बना के, क्योंकि मोस्टली 2 ऑप्शंस की हमको ज़रूरत पड़ती है और पहले ही बना ले तो ईजी रहता है। तो लेट्स स्टार्ट बाय मेकिंग 2 स्क्वायर, इसमें स्क्वायर टेबल बोला है तो हम स्क्वायर टेबल बनाते हैं। एंड इसमें लिखा है द वन हु सिट्स एट द कॉर्नर ऑफ टेबल फेसेस टुवर्ड्स द सेंटर, कॉर्नर वाले सेंटर में फेस करेगा, सेंटर वाला बाहर फेस करेगा।
Now coming to the first statement, B sits at one of the middle sides. तो B को हम कहीं भी बिठा सकते हैं मिडिल में. सपोज यहाँ हम B को बिठा देते हैं. One person sat between B and E. तो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है, इसलिए हमने दो ऑप्शन बनाए थे कि कोई भी ऑप्शन किसी भी डायरेक्शन में बी और ई के बीच में एक पर्सन बैठ सकता है. तो इसमें हमने इस डायरेक्शन में बिठा दिया, दूसरे ऑप्शन में हमने इस डायरेक्शन में बिठा दिया. F sits immediately left of E. तो इस वाले ऑप्शन में E बाहर को फेस कर रहा है. बाहर फेस करता है तो उसका लेफ्ट हमेशा एंटी क्लॉकवाइज होगा. तो F की पोजीशन हो गई हमारी यहाँ पे, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज F की पोजीशन हो गई इधर. Three persons sit between A and F. ए और एफ के बीच में अगर 3 पर्सन बैठ रहे हैं तो किसी भी डायरेक्शन से आप देख लें, यानी कि ए और एफ ऑपोजिट डायरेक्शन में बैठते हैं. इसमें ए की पोजीशन इधर है, इसमें ए की पोजीशन इधर आ गई. एच सिट सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी. अभी हमारे पास सी नहीं आया है, एच अभी तक अभी इसमें कहीं नहीं बैठा है, बट हमारे को एक मिला है कि एच जो है सेकेंड लेफ्ट ऑफ सी बैठता है. तो इसमें अगर सी हमारा इस पोजीशन पे बैठता है तो सी को सेकेंड लेफ्ट होना पड़ेगा. इनवर्ट फेसिंग है यानी कि लेफ्ट क्लॉकवाइज होगा, तो एफ वाली पोजीशन पे सी को होना चाहिए था. तो इधर नहीं हो सकता. इधर अगर आपका सी बैठा है इस पोजीशन पे तो एच आपका एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए इधर इस पोजीशन पे. तो दिस इज वन ऑप्शन वी आर गेटिंग. दूसरा, अगर सी इधर बैठा है तो ई की पोजीशन पे एच को होना चाहिए था, जो पॉसिबल नहीं है. और सिमिलरली अगर सी यहाँ बैठा है तो एच की पोजीशन ए वाली पोजीशन होनी चाहिए. तो इसमें हमारे को एक ही ऑप्शन मिल रहा है जिसमें सी और एच बैठे हैं. सी इधर और उससे सेकेंड लेफ्ट पे एच इधर. सिमिलरली इसमें सी और एच जो दो पोजीशन का गैप है इधर और इधर है, तो सी इधर हो सकता है एंड एच इधर हो सकता है. नेक्स्ट स्टेटमेंट इज डी इज नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ बी. तो डी यहाँ नहीं बैठेगा इस वाले में, तो डी की पोजीशन हमारी हो गई है इधर. डी इधर हो गया है और जो बचा हुआ जी है वो यहाँ हो गया है. इसमें डी बी के पास नहीं हो सकता, तो डी की पोजीशन इधर एंड जी की पोजीशन इधर. लास्ट स्टेटमेंट जो है दैट इज द कंक्लूडिंग स्टेटमेंट, जिससे हमारे को पता चलता है कि हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन हमारा गलत है. तो ये हमारे को इस स्टेटमेंट से पता चला कि जी एंड सी आर नॉट एन इमीडिएट नेबर्स. तो जी एंड सी इसमें इमीडिएट नेबर्स दिख रहे हैं आपको, जी एंड सी. तो इस ऑप्शन को हम काट सकते हैं. We are left with just this one option. First question is, how many persons sit between A and H when counted from right of A?
The word right of A is very important here. So we see between A and H there are total 6 persons: B, G, E, F, C and D. The answer is C, 6. Who sits immediate left of D? Immediate left of D is C here. Four of the following are alike in a certain way. Find the one which is different from all. D facing inwards, F facing inwards, C facing outwards, G facing inwards, A facing inwards. So C is again the option here. Which of the following pairs face outside the center? D and F, no. A and B, no. F and E, no. H and E, yes. H and E are facing outwards. So this is our option. Then we have set of syllogism questions, so which are considerably easy if you know how to solve them. So we have 5 options to mark. If only conclusion 1 follows, then we can mark A, B for if only conclusion 2 follows, C for if either conclusion follows, D for if neither conclusion follows, E for if both the conclusions follow. First question is, only points are draw, only a few points are pin, some pins are toys. So let's start by making a Venn diagram for this. Only points are draw. So draw will be sub part of points. Only a few points are pin. Only a few points are pins. Some pins are toys. So there could be 2 options. One like this, या फिर एक और ऑप्शन हो सकता है इसका, draw point pins. Now we are saying some pins are toys. So some pins are toys could be like this also. पिंस और टॉयज कॉमन होना चाहिए. पिंस और टॉयज ऐसे भी कॉमन हो सकता है जो इसको कट करे, लेकिन इसमें ध्यान रहे कि ड्रॉ को नहीं कट कर सकता ये टॉयज वाला सर्कल या फिर पिंस वाला सर्कल, क्योंकि ओनली पॉइंट्स कैन बी ड्रॉ, है ना. तो नाउ कमिंग टू द ऑप्शन, ऑल पिंस आर पॉइंट्स. नो, दैट्स नॉट पॉसिबल. नो टॉयज आर पॉइंट, that is also not possible because some toys could be point in this second option. So neither follows. So our answer would be D for this. Next question is, only pennies are coins. This is also similar type of question. Only pennies are coins. And some gems are pennies. Only pennies are dollars. So similarly, जैसे pennies coin है, तो वैसे only pennies are dollars. So we see the option one is, some pennies are not gems. Yes, that's true. All coins being gems is a possibility. That is not possible because only pennies are coins. So all coins being gems is not possible. So only one follows. So answer would be A here. So in this question, all caps are bullet. So we can write it like this. All caps are bullets. Then no pill is a cap. So pill could be here, which can cut bullets. No bullet is a gun. Gun has to be away from bullet.
Now, first is some caps being gun is a possibility. Some caps being gun is a possibility. False. This is not possible. Some bullets are not pill. That's true. So only conclusion 2 follows here. So our answer would be B. Then last syllogism is only gloves are socks. Only gloves are socks. So socks would be the inner circle. Only gloves are socks. Then no gloves are foot. Okay. Then we'll keep foot away from gloves. Only gloves are stands. Only gloves are stand. So it could be the stable circle which can cut foot. So the option 1 is no socks are foot. True. Some gloves are not foot. True. So answer E for this also. दिस इज सिंपल लीनियर सेटिंग प्रॉब्लम जो देखने में थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है क्योंकि इसमें हमें ये नहीं पता कि कितने लोग हैं. तो हम क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं और फॉर सिंप्लिसिटी लेट्स अज्यूम द टॉप ऑफ द पेज इज नॉर्थ. हम इसको कहीं लिख भी देते हैं. नॉर्थ इज हियर. So we come to see the three persons sit between A and G. डायरेक्शन इसका हमारे को नहीं पता किस डायरेक्शन में A बैठा है किस डायरेक्शन में G बैठा है. तो we'll come with two options here. It could be A, three persons, 1, 2, 3, G. Similarly, G and 1, 2, 3, A. Next is 5 persons sit between G and T. Okay. Again we don't know G के राइट में बैठा है T या लेफ्ट में बैठा है. तो हम हमारे को दो ऑप्शन लेके चलना पड़ेगा हर एक में. तो G के राइट में अगर T 5 लोग हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 T. or it could be T 1, 2, 3, 4, 5 and G. Similarly इसके 1, 2, 3, 4, 5 T और 1, 2, 3, 4 एंड G के 5 के बाद T है. 1, 2, 3, 4, 5 and T. Now as many persons sit between A and T as between A and H. सारे ऑप्शन में हम देख लेते हैं. A and T के बीच में जितने लोग हैं उतने A और H के बीच में बिठा देते हैं. इस वाले ऑप्शन में फर्स्ट ऑप्शन में A और T के बीच में है 5 + 4 9 persons. तो A और H के बीच में भी हम 9 persons बिठा देते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड इधर हमारा आ गया H. सिमिलरली इधर A और T के बीच में एक ही है तो H इधर आ जाएगा. इधर A और T के बीच में एक ही है तो H इधर आ जाएगा. इधर A और T के बीच में अगेन 9 लोग हैं तो H इधर आएगा. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड
Now T is third from one of the extrements. T is third from one of the extrements. तो अगर इस वाले में T इस वाले एक्सट्रीमेंट से थर्ड होगा तो 1 2, इसमें भी इधर से होगा 1 2, इसमें इधर से होगा, इसकी साइड में 2 और हुए, इधर भी 2। J is second from the left hand. J अगर सेकंड है लेफ्ट हैंड से तो हमारे को ये नहीं पता कि वो H के किधर बैठा है, तो J को हम लेफ्ट हैंड में बिठा लेते हैं सेकंड नंबर पे। तो देयर इज वन पर्सन, देन J, देन इन J और H के बीच में कुछ लोग होंगे। T इसमें थर्ड था फ्रॉम वन एक्सट्रीमेंट, तो J को यहीं होना पड़ेगा, इस साइड में और लोग नहीं पढ़ सकते। सिमिलरली इस साइड में और लोग नहीं पढ़ सकते, इस साइड में कितने भी लोग हो सकते हैं, तो J होगा और इनके J और G के बीच में कुछ लोग होंगे। Then next option is, next statement is D sits second to the right of J. J के सेकंड राइट में D बैठते हैं, तो फर्स्ट राइट सेकंड राइट बैठ गए D। Similarly इधर second right of J is here D, second right of G here is D, second right is again 1 and then here is D, and D और G के बीच में भी कुछ लोग बैठे हैं। D sits second to the left of H. सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H है, तो यानी कि D और H के बीच में एक ही पर्सन है यहाँ पे। सिमिलरली इधर अगर D सेकेंड टू द लेफ्ट ऑफ H है, तो इसमें आप देखेंगे D और H बहुत दूर बैठे हैं, तो दिस ऑप्शन कैन नॉट बी आवर आंसर। सिमिलरली इसमें D और H एक्सट्रीम एंड्स पे बैठे ऑलमोस्ट, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता। इसमें भी D और H बहुत दूर दूर बैठे हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। Now J and T are not an immediate neighbor to each other. This statement, the last statement which we get from the question, that J and T are not an immediate neighbor to each other, is redundant, because we have already got our answer from this first option here. फर्स्ट ऑप्शन से हमारे को पता चल गया है कि कितने लोग बैठे हैं, कौन कहाँ बैठा है। पहले क्वेश्चन पे जाते हैं। इफ x sits fifth to the right of h, then how many persons sit between x and a? तो हम पहले h के फिफ्थ राइट में बिठा देते हैं x को, तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ, x की पोजीशन ये हो गई। देन फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन x एंड a, तो 1 2 3 and 4, तो 4 इज आवर आंसर फ्रॉम दिस। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, हम सारे लोग काउंट कर लेते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28, तो टोटल 28 लोग इस स्ट्रेट लाइन में बैठे हैं। हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन J एंड H? 1, then D, then one more. 3 persons are sitting between J and H. आज के पेपर की ये एक और थोड़ी सी डिफ़िकल्ट पजल है, जिसमें 8 पर्सन हैं जो 4 महीनों में बॉर्न हैं, डेट इधर 13th या 24th, और हमारे को पता नहीं हो किस ऑर्डर में बॉर्न है, किस डेट को बॉर्न है, किस मंथ में बॉर्न है। तो we'll just go by the statements and we'll start try to solve them. So first of all, let's place the months in their order. So
लेट्स 13 या 24 तारीख है, तो हम इसको इस तरह से लिख देते हैं F13 F24 April 13 April 24 August 13 August 24 October 13 and October 24 हमने इस तरह से लिख लिया। इसके बाद हमारे को पता है कि R was born on even date in the month which is 31 days. So R was born on even date यानी कि 24 को born हुआ है in the month which has 31 days. तो 31 days हमारे सिर्फ अक्टूबर और अगस्त में है। तो we have two options here जिसमें R born हुआ है, that is either August 24, okay, R was born here, or he was born on October 24. Now more than 3 persons were born between D and R. तो D and R के बीच में more than 3 है, यानी कि 4 हो सकता है, 4 से ज़्यादा हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। तो पहले वाले ऑप्शन में देखिए तो 1 2 3 4 पर्सन अगर उसके बीच में born है तो D की पोजीशन यहीं पर बनती है। लेकिन सेकंड वाले में D की पोजीशन हमारे को काफ़ी मिलेगी, जैसे 1 2 3 4 मोर देन 4 है, तो D या तो यहाँ हो सकता है मोर देन 3 के लिए, या फिर हमारे को एक और ऑप्शन मिल रहा है इधर कि D इधर फेब 24 को बॉर्न हुआ है। एक और ऑप्शन मिल रहा है जिसमें D हमारा 13th फेब को बॉर्न हुआ है। डरिए मत, आपको लग रहा होगा ज़्यादा ऑप्शन है तो डिफिकल्ट होगा क्वेश्चन सॉल्व करना, लेकिन आप ऐसे ऑप्शन बनाएंगे और सिंपल सिंपल रीड करके बस आप सॉल्व करते रहेंगे तो आपसे इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेटमेंट पे आते हैं। नंबर ऑफ पर्सन्स वर born before D same as number of persons born after H. बिफोर D इसमें 0 है पहले ऑप्शन में, तो आफ्टर H भी 0 होना चाहिए। इसमें बिफोर D 2 है, तो H के बाद भी 2 होने चाहिए, तो H को हम अगस्त 24 दे देते हैं। इसमें बिफोर D 1 है, तो इसमें H यहाँ होना चाहिए। देखिए हमारा लास्ट जो ऑप्शन है D के पहले 0 है, तो H के बाद 0 होना चाहिए, इससे लास्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे हमारा कैंसिल हो गया है, तो इसको हम इजीली हटा सकते हैं इस वाले ऑप्शन को। तो अब हमारा एक ऑप्शन कम हो गया। नाउ नो वन वाज बोर्न बिटवीन R एंड M, R और M के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, तो R के जो पहले वाले ऑप्शन में या तो M अगस्त 13 को बॉर्न होगा या अक्टूबर 13 को बॉर्न होगा, तो हम इसको यहाँ लिख देते हैं, M1 M2 करके लिख लेते हैं। तो एक ऑप्शन में इधर से लिख लेते हैं, दूसरे ऑप्शन में ऐसे लिख लेते हैं। सिमिलरली इसमें M यहाँ होगा। अब अगेन R और M के बीच में कोई नहीं बॉर्न हुआ, तो यानी कि लास्ट ऑप्शन अगेन हम डिलीट कर सकते हैं। Next is both S and B were born on the same date but before August. Okay, before August born है S and B, तो इसमें या दोनों सेम डेट पर भी born है, तो फेब 24 और अगस्त 24 में S and B born है, फेब एंड अप्रैल 24। तो S and B on 24th फेब और अप्रैल। सिमिलरली इसमें भी अगस्त से पहले born हुए हैं। लास्ट वाले ऑप्शन में भी सेम ऑप्शन हमारे को मिलता है कि अप्रैल 24 है, फेब 24 को S and B born हुए हैं।
Not more than two persons were born between P and Q. Not more than two persons यानी कि P and Q के बीच में मैक्सिमम एक जना हो सकता है या दोनों साथ में बैठे हैं, साथ में बोनो है, मतलब एक के बाद एक मंथ में बोनो है। तो 24 तारीख तो हमारी बुकड है, 24 तारीख तो हमारी ऑलरेडी बुकड है यहाँ पे। और एस एंड बी, ठीक है, और पी और क्यू के बीच में दो जने से ज़्यादा बॉन्ड नहीं हो सकते हैं। तो अगर पी यहाँ पर है या क्यू यहाँ पर है तो इन दोनों के बीच में तो 3 का ऑप्शन हो जाएगा। तो इसको हम क्रॉस कर देते हैं पहले ऑप्शन को, क्योंकि पी और क्यू के बीच में 3 लोग नहीं हो सकते। इधर पी और क्यू के बीच में एक ही जना है, तो दिस कैन बी आवर आंसर। इधर अगेन पी और क्यू के बीच में दैट इज फेब 13 और अगस्त 13 में 3 लोग हैं, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। तो हमारे पास बचता है सिर्फ एक ये वाला ऑप्शन। अब हमारे को इसमें बिठाना है पी क्यू एस और बी को। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाते हैं, क्या पता हमारे को इससे कुछ मिल जाए। S was born before Q but not just before। तो S was born before Q but not just before, है ना। अगर S हमारा इधर बॉर्न होता है तो, और Q हमारा यहाँ बॉर्न होता है, और B हमारा यहाँ बॉर्न होता है, और P यहाँ बॉर्न होता है, तो ये सही बैठ रहा है। दूसरा भी ट्राई कर लेते हैं हम। अगर S यहाँ बॉर्न होता है और Q को इसके बाद ही होना है, तो ये तो इमीडिएटली बाद में होगा, यानी कि हमारा जो हमने फर्स्ट आंसर निकाला है दिस इज आर करेक्ट। तो इधर पहला क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। पहला है 3 persons were between S and R। ट्रू। P, B, Q and P, B and Q are there between S and R. This is true. M was born in the month which has 30 days. False. M is born in August. Sorry, October, which also has 31 days. D was born just before S. That's true again. D was born just before S. So first and third are true. So this is our answer. The next question is how many persons were born before the one who was born just after P? Just after P was born B. And how many persons were born before B? 3. D, S and P. So as many persons were born between H and B? H and B में between 3 लोग हैं, तो this is the correct answer. How many persons were born between Q and D? Q and D के बीच में 3 लोग हैं, S, P and B. This is our answer. 4 of the following 5 are alike in a certain way and so form a group. Find the one who does not belong to that group. D, born on Feb 13. Q, born on August 13. M, born on October 13. P, born on April 13. H, born on 24th. So this one is our odd one. एक ये ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन आया जिसमें 7 फैमिली मेंबर्स आर लिविंग इन अ फैमिली। A and C are only sisters of B। So हम सीधे स्टेटमेंट रीड करते हैं और सॉल्व करना शुरू करते हैं ना। A and C are only sisters of B, हमें B का जेंडर नहीं पता, तो हम B को ऐसे लिख देते हैं, उसकी सिस्टर्स A and C है, A and C। फीमेल है तो हम इसको सर्कल से कवर कर रहे हैं, मेल होता तो स्क्वायर बना देते हैं। सिंगल डैश फॉर सिबलिंग, डबल डैश फॉर कपल्स, तो हम याद रखेंगे। देन H इज द फादर ऑफ B। H B का फादर है तो A और C का भी फादर हुआ।
H is the father of B square. M is married to H. If M is married to H, then she has to be lady and mother of B, A, and C. B is married to V. B is married to V. Okay. V has no sibling. Okay, V has no sibling. R is paternal grandfather of B. ग्रैंडफादर है पैटर्नल, यानी कि पैटर्नल है तो एच के फादर होंगे वो। M has only 3 children, that is B, A and C. V is not a son-in-law of M. If V is not son-in-law of M, so that means V is daughter-in-law. That means B is our male. Now we have total 4, 5, 6, 7 members और उनका हमारे को रिलेशनशिप इस तरह से मिल गए हैं। इसकी बेसिस पे हम क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है हाउ मेनी फीमेल्स आर लिविंग इन द फैमिली। So there are 2 females, one is M, one is V. The answer is 2. How is M related to R? M is daughter-in-law of R. This is our answer. Simple. ये अगेन एक क्वेश्चन है जिसमें हमारे को ऑर्डर में अरेंज करना है और इसमें क्वांटिटी ऑफ वाटर है लीटर्स में, जो A, B, C, D और F जिससे फिल्ड है। तो स्टेटमेंट रीड करते हैं। द जार filled with 15 liters of water is just more water to jar E. That means if 15 is just more than E, the box with maximum quantity has 33 liters of water. एक ऑर्डर बना लेते हैं 6 जार्स का और इसको उसमें लिख लेते हैं हम इस तरह से 33 से टॉप में रहेगा, इसके नीचे 6, टोटल 6 जार्स। jar D has more water to jar B but not more than jar C. D is greater than jar B but smaller than less than C. Now jar F has more water to jar E but not more as jar A, which is less quantity of water to jar D. एक ऑर्डर हमारे को और मिल गया, एक ऑर्डर मिला था हमको सी डी बी, तो दूसरा मिल गया हमारे को कि एफ जो है एफ हैज मोर वाटर देन जार ई बट नॉट मोर एज जार ए विच हैज लेस क्वांटिटी टू डी। ठीक है, तो अब ये देखिए हमारे को इन दोनों को अगर हम कंबाइन कर दें तो इस तरह से डी कॉमन है, सी डी और इनके नीचे ए एफ ई और बी है, तो हमें 6 का ऑर्डर मिल गया, यानी 33 लीटर्स जो था दैट इज सी, उसके इमीडिएटली नीचे डी, देन ए एफ ई और बी इसके नीचे हैं, बट उनका क्या ऑर्डर है वो भी हम देखते हैं आगे। jar B has more quantity of water than the jar filled with 15 liters of water. So B has to be greater than 15, which is greater than E. हम B लिख देते हैं इस तरह। तो E के ऊपर
दो तो मिनिमम होने ही चाहिए। जी। और तो हम ई को अगर यहाँ रखते हैं तो 15 इधर हो जाता है, and b could be anywhere of these two. Now f is greater than e, so f could be anywhere on these three. A is greater than f and e, तो a could be इन दो प्लेसेस पे, तो a का और b का इन दोनों जगह पे हमारी पोजीशन बन रही है। तो a और b यहाँ हो जाते हैं और ये f हो जाता है। तो इस तरह से हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। इसमें पहला क्वेश्चन हमसे पूछता है कि हाउ मेनी जार्स हैव फ्यूअर वाटर टू जार ए, तो इट कुड बी ईदर 3 or it could be ईदर 2, तो it cannot be determined so easily, so E is the answer for this one. Then if jar D has twice quantity to jar F, so D will be 30 liters. What is exact quantity of water in jar D? It is 30 liters. If box A has 16 liters of water, then what may be the possible quantity of water in jar D? बॉक्स ए में अगर 16 रख देते हम तो जार डी में 16 से ज़्यादा होना चाहिए और 33 से कम होना चाहिए। 16 से ज़्यादा और 33 से कम एक ही ऑप्शन है हमारे पास, 25 लीटर्स। लास्ट क्वेश्चन में है जार बी हैज 10 लीटर्स मोर वाटर टू जार एफ, तो जार बी में एफ से अगर 10 लीटर ज़्यादा है तो 25 लीटर्स। व्हाट इज द सम ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाटर इन जार बी एंड सी? सी में 33 है प्लस 25 इज सॉरी 33 प्लस 25, यस, तो 58 हमारा आंसर बनता है, जो कि यहाँ पे नहीं है, तो नन ऑफ दीज इज आवर आंसर। Okay, so there were 3 standalone questions also in this shift. So this one is easy. If it is possible to make meaningful word with the first, third, ninth, and 11th letters of the word aggregation. So first letter is A, third letter is G, ninth letter is I, and 11th letter is N. So meaningful word which we can make by unscrambling this is gain. So there is only one word which can be made from this. So which would be the third letter of the word from the left? Is I. This is the answer. This question is little time consuming question. So the question is, in the word handcraft, how many pairs of letters have the same number of letters between them in both forward and backward direction as in the alphabetical series or dictionary, you can say. So here we can see this is little time consuming, so we can uh, start from the first letter H, then start counting with how many letters are between the next letter, and in alphabetically order that number comes or not. So H and A, there's no combination fitting. So the combination which is fitting is one is N and T. So if we see, there are total 1, 2, 3, 4 and 5 letters between N and T. Same happens in our alphabets also. O, P, Q, R, S. So these are 5 letters. One pair is N, T. Second pair is D and C. So 0,
letters between them. Then there's D and A. We have two letters between A and D. So one pair is D and A. Next is here C and A. There is one pair. So we can see there may be more options. So we can directly go to the option and see there is one option which is saying more than 3. So when we have already calculated more than 3 from this, so no need to go further and waste your time. You can directly mark more than 3 in this question. In the given word carbonize, if vowel is replaced with its next letter and consonant is replaced with the previous letter, now how many letters repeated? So we can do it like this. We can write carbonize at one place. We see vowel is replaced with its next letter. Vowel, 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 vowel. Since E, there is nothing next to E, so we'll not write anything. So vowel is replaced with its next letter R. O by N, I by Z. Similarly, consonant is replaced with its previous letter. These are the consonants. So they are replaced by their previous. So A, R, O, I. So we are left with a word C, R, A, R, N, O, Z, I and E. So we see only one letter is repeating here, that is R. So our answer is B. थैंक यू दोस्तों एंट्रेंस हैक्स के वीडियो देखने के लिए। आगे के और वीडियोस देखने के लिए प्लीज़ सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।